حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اکل طیبا وعمل فی سنت وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ہم جو انسان ہیں، ہماری تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے اسی وقت سے غذا کی ہسٹری بھی شروع ہو گئی۔ غذا جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کی ہسٹری ہمارے پیدا کیے جانے کے وقت سے اس کی ہسٹری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کر کے اللہ نے جنت کو بھیجا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان دونوں کے لیے، فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اے آدم آپ جائیے جنت میں، وَزَوْجُكَ اور آپ کی بیوی بھی، الجنت جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں قسم قسم کی چیزیں، میوے، قسم قسم کے پھل، یہ سارے کے سارے کھائیے، خوشی سے کھائیے، مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن، کھانے کا بھی حکم، نہیں کھانے کا بھی حکم، دو بھی آ گیا۔ کیا کھا سکتے ہیں؟ سونف کھا سکتے ہیں۔ کیا نہیں کھا سکتے؟ ایک درخت کا پھل نہیں کھا سکتے۔ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا، قریب بھی جانا نہیں، کھانا تو دور کی بات، تو بہت بڑی غلطی، نزدیک بھی جانا نہیں۔ گناہ ایک ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہم گناہ کے قریب جاتے ہیں، بعد میں گناہ کرتے ہیں۔ شیطان دھیرے 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 ہم کو کھینچ کے گناہ کے قریب لے جا کے چھوڑ دیتے، اب اس کے بعد ہمیں خود جا کے گر جائیں گے۔ موبائل ہے مثال کے طور پر، شیطان سب سے پہلے پکڑائے گا، واٹس ایپ میں آنے والے کوئی دینی میسیج، امیج کو، ویڈیو کو بتا کو ذرا یہ دیکھ لے تم کیا آپ کو ہے، یہ دین کا میسیج آیا ہے بول کے ہی ہاتھ میں پکڑائے گا شیطان۔ وہ دین کا میسیج ہے بول کے وہ امیج پڑھنے گئے، وہ ویڈیو دیکھنے گئے، اس کے بعد ایسے ویڈیو میں یوٹیوب کی لنک ہے، وہاں سے یوٹیوب کو گئے، یوٹیوب میں دوسری غلیظ چیزیں جو ہیں، خراب چیزیں ہیں، وہ دیکھنا شروع کر دی۔ آنکھوں کا غلطی، گناہ ہو گیا۔ کیوں گناہ ہوا؟ شروع سے وہاں پر جہاں قریب بھی نہیں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ گناہ کے قریب کی جگہ جو چانسز ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ جو گناہ کے خطرے جہاں پر ہے نا، چانسز جہاں رہتے، وہاں جانا بھی نہیں۔ وہاں تک چلے گئے تو پھر گناہ میں پڑ جانا ایزی ہو جاتا، ہم نہ بچانا بہت مشکل۔ 10 کلومیٹر دور سے پوڑی میں گرونوں کو بول کے بچانا آسان، بالکل گھڑے کے پاس ایک پاؤں گھڑے میں ڈال دیا اور ایک پاؤں سائڈ میں رکھا ہے، اب بچانا مشکل ہو جاتا، بہت ایزی کے ساتھ گر جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم تھا، لا تقربا هذه الشجرة، تمہیں تمہاری بیوی اس درخت کے قریب بھی، نزدیک بھی جانا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بھول کر حضرت آدم علیہ السلام وہ جھاڑ کے پھل کو کھا لیے۔ کھانے سے اللہ دنیا کو بھیج دیا، دنیا میں آ گئے۔ دنیا میں کس واسطے اتارے گئے؟ بھول کر کیا نہیں کھانا تھا کہ وہ کھانے سے۔ تو میں آپ کو بولتا ہوں، غذا مین چیز ہے، بہت ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں بہت خیال کرنا، بہت توجہ کرنا، بہت احتیاط سے کام لینا، سوچ سمجھ کر، ہوشیاری سے، سمجھداری سے سوچنے کی چیز ہے غذا۔ کھانے پینے کی چیزیں ہماری مرضی کیا ملے وہ کھائے جا بول کے اللہ چھوڑے نہیں۔ دنیا میں جو جانور ہیں نا، ان جانوروں کو رکھ کر ایک لاجک سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ دنیا میں جو جانور ہیں، 3 ٹائپ کے جانور ہیں۔ بعض جانور ایسے رہتے ہیں، انیملز ایسے ہیں، انیملز بھی، برڈس میں بھی بولے جا، 2 میں بھی، വിലങ്ങുകൾ പറവൈകൾ இரண்டிலும் முதல் விதம் 3 விதமாக அதை நாம் பிரிக்கலாம்। सबसे पहले नंबर 1 वो टाइप के हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते, गोश्त मीट होना हो, गोश्त नहीं तो क्या भी खाएंगे नहीं। शेर है, बाघ है, चीता है, भूखे मर गए तो भी परवाह नहीं, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, पत्ता नहीं खाएगा। घास पत्ता खा को, फल्ला खा को जिंदगी गुजारे सका नहीं, वो तो गोश्त खाएगा पक्का।
सेकेंड टाइप जानवरों के वो हैं, बर्ड्स में भी परवैगल विलंगगल, इसमें सेकेंड टाइप क्या करके बोले तो वो है जैसा कि बकरी, गाय, बैल, ऊंट, जिराफ जो हमें बोलते हैं, ये सब चीज़ें नहीं। ये सब क्या, सिर्फ घास, पत्ता, फल ऐसा खाने का। ये भूल को भी भूख के मर गए तो भी परवाह नहीं, गोश्त सब खाएंगे नहीं। खाए सका अल्लाह पैदा भी करे या नहीं हो। परिंदे में आप देखें जब बास परिंदों के पाँव के नाखून है ना कोर के रहते हैं, बिल्कुल कोर नाखून बहुत तेज रहता है। उनका चोंच है ना, मुंह का जो चोंच है ना वो बिल्कुल कोयता के जैसा बिल्कुल खम के क्रॉस होकर होता है। गोश्त कौन से परिंदे खाते कि अल्लाह उनको ऐसा पैदा करता है, उनको गोश्त को, उनके पास तो हाथ नहीं रहने की वजह से उनके नाखून भी, उनके चोंच भी गोश्त को बोटी बोटी करने, खेमा खेमा करको खाने के वास्ते अल्लाह उनको वैसा पैदा करता है। जो जानवर है उनके चुंगल, उनका पंजा ऐसा अल्लाह बना को है, उन्होंने हमला करते अपने पाँव से, अपने हाथ पाँव से हमला करते, दांत इतने कोर बना हुए अल्लाह, तेज बना हुए अल्लाह, वो दांत के जरिए से कौन से जानवर पर हमला करेंगे, अटैक किए, वो जानवर के चमड़े को छील कर उसके गोश्त को चीर फाड़ को खा जाए, उसके लायक अल्लाह दांत रखा है। जानवरों में से खैर तीसरी किस्म जरे जानवर ऐसे हैं, जरे परिंदे भी हैं, जरे जानवर भी हैं ऐसे, जो जानवर ज़रूरत पड़े तो घास ये वो खाना गिना कर वो भी खा लेता। जैसा हमने बहुत हमारे आसपास झड़ने का कुत्ता है, कुत्ता बहुत ईजी मिसाल इसके वास्ते, कुत्ता है ये खाने की चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी खा लेता, गोश्त वो भी खा लेता, सब उसे क्या ये छोड़ा वो छोड़ा कर को नहीं, ग़िज़ा क्या तो मिले तो बस करके उन्हें खा लेता हूँ। ऐसे कितने की बोले जा, मिसाल परिंदों में भी बोले जा, जानवरों में भी बोले जा। अल्लाह इंसान को सारी मखलूक में सरदार बना के पैदा करे। अल्लाह पूरी मखलूक, कितने दुनिया में जानवर आएंगे, पूरे के सरदार है सो इंसान। इंसान के अंदर अल्लाह ताला दो टाइप भी रखा है, इंसान के अंदर अल्लाह सलाहियत रखा है। हमारे दांतों को देखे तो मालूम करेगा, सामने के सरे दाता बैल बकरी को गाय को है सका वैसे दाता है, सेम नेर कोड बोले जाना, नेर कोटिंग सेम साइज में, क्या भी ऊपर नीचे नहीं सका, सामने के दाता रहता। ये भाजी, तरकारी, सब्जियाँ, फल्ला ये सब खाने वाला इंसान को बताता है। साइड के दाता जो किनारे किनारे के कोर ज़बरदस्त गोश्त को, हड्डी को, कतर को खाने के वास्ते, गोश्त को खाने के वास्ते उसके लायक अल्लाह बना पड़े। इससे किताबों में लिखने वाले लिखते ये जो इंसान के दांतों की डिज़ाइन है वो देखे तो मालूम होता सारे जानवरों का सरदार अल्लाह इंसान को बनाए। तो जो भी ग़िज़ा उम्दा ग़िज़ा है, पूरा उम्दा ग़िज़ा, ज़बरदस्त डिश, मीट, ज़बरदस्त चीज़ मीट है, ये खाने के लायक भी अल्लाह उसके मुंह को देखे कुछ मालूम होता। उसको जो अल्लाह पैदा करे ना, क्रिएचर पैदा करते हैं, उसकी क्रिएशन से मालूम होता अल्लाह दोनों के खाने के लायक इंसान को बनाया है। अभी जो हम कुर्बानी करके, कुर्बानी के अपने या कुर्बानी के गोश्त दूसरे की तरफ से हमारे पास जो आए उसके गोश्त को हम खाते हैं, हमको एक नियामत समझ के खुशी के साथ उसको खाना है। ये कोई ये नहीं है कि जिम्मेदारी सर से उतार डाले, गोश्त भी खाने का नहीं, ऐसा माइंड सेट भी हमारा नहीं रहना। हम खुशी के साथ उसके अंदर कि भाई इसके ज़रिए से इबादत अदा की गई। दो पॉइंट ऑफ व्यू दो भी है। नंबर एक, जानवर लेने के टाइम में, कुर्बानी करने के टाइम में गोश्त मुख्यமான நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது। गोश्त मेन मीट गोश्त होना सो को वो माइंड सेट होना नहीं, जायज़ नहीं। कुर्बानी इबादत, जानवर को ज़बह करना इबादत, वोच में करने जाता हूँ बल्कि माइंड सेट रहना। ज़बह करने से पहले गोश्त को ख्याल नहीं रखना, ज़बह करने के बाद கரிதான் முக்கியங்கிற நோக்கம் இல்லை, அந்த கறிக்கு ஒரு கண்ணியம் கிடைக்க வேண்டும், கண்ணியத்தோடு ये कुर्बानी में ज़बह करे सो जानवर का गोश्त, ये गोश्त खाना नहीं, सबको बांटता को नहीं। वह कुर्बानी का गोश्त उतरता सो नहीं, कुर्बानी का गोश्त गलता नहीं बराबर, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता सो नहीं, ये सब बोलना वो हमारे कुर्बानी के जानवर की इज्जत और एहतराम हमारे दिल के अंदर कम है को मतलब। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, दिल के अंदर अगर तक़वा है बोले तो ये कुर्बानी के जानवर के गोश्त को भी हम बहुत इबादत समझ को खाएंगे। गरीबों को देना है, ये तो पुरानी बात आपको मालूम है। कई सारे गरीबों के घर ऐसे हैं, छोटे का गोश्त आट्टिनुடைய இறைச்சி பார்த்தே வருடங்கள் கழிந்து விடும் அவர்களுக்கு, खाने की तौफीक नहीं, सादत नहीं मिलती। ऐसे लोगों को खास तौर पर हमें जाजा को देना, उन लोगों का ख्याल करना। मैं असल में आपको बोलना चाहता हूँ समय हलाल हराम इस्लाम के अंदर कैसा ज़बरदस्त कांसेप्ट है। इस्लाम எந்த அளவுக்கு தூரமாக ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்முடைய தர்பியத் எப்படி இஸ்லாம் செய்கிறது, எந்த மனிதன் எந்த விலங்கினுடைய எந்த இறைச்சியை எப்பொழுது எப்படி விரும்பினாலும்
சாப்பிடலாம் என்று அந்த அளவுக்கு ஒரு சுதந்திரம் தரப்படவில்லை மனிதனுக்கு. கைசா मिले वैसा मर्जी से जानवर के जैसा कोसा मिले वो खाने तक को नहीं छोड़े. कौन सा भी खाना चाहिए எந்த இறைச்சியுமே சாப்பிடவே கூடாதுன்னு கூட இஸ்லாம் சொல்லல. இஸ்லாம் அதில் வரையறை வச்சிருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி சொர்க்கத்திற்கு ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அனுப்பி எல்லா பழங்களையும் ருசிகளையும் கனிகளையும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் உண்ணலாம், ஆனால் இந்த மரத்தினுடைய கனியை தவிர என்று எதை சாப்பிட வேண்டும் எதை சாப்பிடக்கூடாது என்ற 2 ராஜ்யத்தையும் இஸ்லாம் ஆரம்ப நாளிலிருந்து மனிதன் எப்பொழுது படைக்கப்பட்டாலும் அந்த நாளிலிருந்தே இது வந்து கொண்டிருக்கிறது. உலகத்தில் அனுப்பப்பட்ட மனிதனுக்கும் அதே நேர்களை அல்லாஹ் தஆலா அதே முறையை தான் அல்லாஹ் தஆலா பின்பற்ற சொல்லியிருக்கிறார். खाना नहीं खाना, जायज़ नहीं जायज़ हमारे खाने में है. एक जानवर जिंदा है, वो जानवर के एक पार्ट को कट करके खाना जुल्म. மிகப்பெரிய ஒரு பாவி கல்மனசுக்காரன் தான் இந்த வேலையை செய்வான். இஸ்லாத்தில் அறவே கூடாது. क्या आप समझ जाओ, எதெல்லாம் நம்முடைய உலக மக்களுக்கு நம்முடைய இந்த புத்திக்கு தவறாக தோணுகிறதோ அது கண்டிப்பாக இஸ்லாத்திலும் தவறாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं कि पाक हैं कि इस्लाम में वो हलाल, क्या क्या चीज़ें खराब हैं कि इस्लाम में वो हराम. உலகத்தில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னது போல அல் ஹலாலு பையின் வல் ஹராமு பையின் வ பைனஹுமா முஷ்தபிஹாத்துன். ஹலால் மிகவும் வெளிப்படையாக அது சொல்லப்பட்டு விட்டது, குர்ஆனிலே இருக்கிறது, ஹதீஸிலே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொன்மொழிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது ஹராம், இது ஹலால் என்பதாக தெளிவாக குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் கூறப்பட்ட விஷயங்கள் கண்டிப்பாக அது தெளிவான ஹலால் விஷயங்கள், தெளிவாக ஹராமாக்கப்பட்ட விஷயங்கள், அது தெரியும் நமக்கு. உபைனஹுமா முஷ்தபிஹாத்துன், இரண்டுக்கும் மத்தியில் சில பொருள்கள் இருக்கிறது, சில விஷயங்கள் இருக்கிறது. அதை பற்றி விரிவான விளக்கம், தெளிவான விளக்கம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை. குர்ஆன் சொன்னாகிறது இது ஹலாலா ஹராமா, ये हलाल की हराम की करको कंफर्म साफ साफ बोल को नहीं, दिल में शक आता, डाउट आता, இது ஹலாலா ஹராமான்னு தெரியலையே, இது யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா, சாப்பிடலாமா கூடாதா, இது குடிக்கலாமா கூடாதா, ஹஜ்ரத் இது யூஸ் பண்ணலாமா, डाउट आता है. दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका. एक चीज़ के बारे में डाउट है, हलाल की नहीं की करको छोड़ दो, क्या ज़रूरी. हलाल को यूज़ करना करको क्या भी अल्लाह फ़र्ज़ बोल बोले, हराम से बचना फ़र्ज़ है. இந்த லாஜிக் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதெல்லாம் ஹலாலான உணவுகள் பானங்கள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் கண்டிப்பாக உபயோகித்தே தீர வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கடமையாக்கவில்லை. ஆனால் எதுவெல்லாம் ஹராமாக இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் கொண்டு தவிர்த்திருப்பது என்பது நம் மீது கடமை. इस वास्ते क्या करना, एक चीज़ के बारे में डाउट आ गया, हलाल की हराम की छोड़ो, रिसर्च करो. एक आदमी कमाता, हलाल कमाई भी है, हराम कमाई भी है. ஹலாலான சம்பாத்தியமும் இருக்கிறது, ஹராம் சம்பாத்தியமும் இருக்கிறது. இரண்டுமே கலந்த அவனுடைய அந்த பணம் அதை செலவு செய்து நமக்கு ஒரு கிஃப்டாக ஒரு சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்தை அவன் கிஃப்டாக தருகிறான். அதை வாங்கிக் கொள்ளலாமா? டீ ஹோட்டலில் அவன் தன்னுடைய காசில் டீ கொடுக்க சொல்கிறான். பஜ்ஜியோ போண்டாவோ வடையோ வாங்கி கொடுக்குறான், ஜூஸ் வாங்கி கொடுக்குறான், அல்லது அவனுடைய வீட்டில் விருந்தளித்திருக்கிறான். उसके घर को हमें कहीं दावत, हजरत तूने उसकी कमाई में हराम भी होने ज़रा करता, सोच बड्डी को छोड़ को कमाता, ये करता वो करता, खाए जा क्या हजरत, ज़रूरत नहीं. हलाल भी हराम भी दो भी है, तुमने डाउट आ गया करके बोले तो वैसे चीज़ से बच जाना अच्छा. क्योंकि जो चीज़ हमें खाते हैं, हमारे ग़िज़ा हमें क्या चीज़ खाते की क्या चीज़ पीते की वो कितना पाक रहता है कि कितना हलाल रहता है कि हमारा दिमाग भी उतना अच्छा, हमारा दिल भी उतना अच्छा होता, हमारी बातें भी நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் அது எல்லாத்திலும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவின் பரிசுத்தம் என்பது வெளிப்படும். उसकी पाकी है ना, उसकी तहारत, उसकी अच्छाई, वो सारा का सारा जाहिर होगा. अच्छी चीज़ें मैं खा पाऊँगा तो मेरे दिमाग अच्छी चीज़ें सोचेंगे, मेरे दिल में ईमान का रोशनी, ईमान दीन उड़िए ओली अददान, हमारे दिल में ईमान का रोशनी नूर चमकेगा. हमारी ज़ुबान से, हमारे आँखों से, हमारे कान से, हमारे हाथ पाँव से सबसे अच्छा काम होगा. खराब काम होगा. மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய சொல்லும் செயலும் நாம் செய்யவே முடியாது, செய்யக்கூட மாட்டோம். उतने अच्छे हमारा दिल भी, हमारा आज़ा भी, हमारा मुआशरे को भी, सोसाइटी को भी, आखिरत में भी काम आने वाला ज़बरदस्त इंसान मैं बनूंगा. अगर ஹலாலான விஷயங்கள் மட்டுமே நான் உண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனாக இருந்தால், அதே நான் ஹராமான விஷயங்கள் எது எங்கிருந்து எப்படி வந்தது என்று எதுவுமே யோசிக்காமல் எது வந்தாலும் சரி என்று நான் சாப்பிடக்கூடிய மனிதனாக இருந்தால் என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த ஈமானுடைய ஒளி மக்கி போய்விடும், அது அணைந்துவிடும்.
என்னுடைய புத்தி, என்னுடைய மனசில் வரக்கூடிய சிந்தனைகள் எல்லாமே தவறான சிந்தனைகளாக தான் இருக்கும். என்னுடைய வாயிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய வார்த்தைகளும், நான் கேட்கக்கூடிய செயல்களும், நான் செய்யக்கூடிய செயல்களும் எல்லாமே दूसरों को खराब करे, जैसा एक वायरस सच में एक नासूर जैसा मैं हो जाऊँ. मेरे रहने से मेरे घर वालों को भी नुकसान, मेरे मोहल्ले वाले को नुकसान, मेरी बस्ती वाले को नुकसान, इस्लाम का भी, दुनिया का भी, दीन का भी पूरा नुकसान होगा अगर मैं हराम चीज़ें खाता हूँ. तो वो ज़माने में शादी हो गई तो है ना, शौहर है ना, RS को फर्स्ट नाइट में बिठा முதலிரவே கணவன் தன்னுடைய மனைவியிடம் சொல்வார் வேண்டாம், நான் என்னுடைய இந்த நாள் வரை என்னுடைய வாலிப வயதை ஹலால் உணவுகளில் மட்டும்தான் நான் சாப்பிட்டு என்னுடைய வாலிப வயதை ஹராத்தை விட்டு தவிர்த்து பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறேன். इनमें कोड तुम्हें क्या खाए इतने दिन, तुम्हारे अब्बा की कमाई कैसी, तुम्हारे भाई की कमाई कैसी, वो सब पूछने का नहीं. इनमें कोड என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை மட்டும்தான் சாப்பிட வேண்டும். मैं हलाल कमाता हूँ 100%. रत्ती भी हराम, मेरे घर में हराम के एक पैसे को भी जगह नहीं. हलाल किच, अब तुम्हें हलाल किच खाना ಏನು ನಮ್ಮ ಇರುವವರಿಂದ தான் ಸಂಧಿಗಳು ಉರುವಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. हमारे 2 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन नस्ल आने का है. हराम चीज़ अगर देना रहेगा तो जनरेशन बर्बाद है. हलाल अगर हमें खिलाए तो जनरेशन ज़बरदस्त औलिया पैदा होंगे, वलिया, अल्लाह के खुतुब, अल्लाह के अब्दाल, उलमा, सालिह, ऐसे चुलगा पैदा होंगे. तो शौहर बीवी को बिठा को ये बात बोल जाता था, बाप को, अम्मी को, अब्बा को अपने बच्चों के मुंह में एक रत्ती बराबर भी हरामान पानक्तिन और सट्टू कूड़ा सेंडर में कूड़ा हरामान उनविलिருந்து ஒரு खाने का एक दाना रहता है, एक दाना भी अंदर चलता रहने का प्रॉफिट है. हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु को एक सहाबी फजर की नमाज होते ही सारे सहाबा है ना हुजूर के साथ ऐसा बैठ को जिक्र कर लग रहेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र कर लग रहेंगे, दुआ जिक्र कर को इसमें चलेंगे. इशराक का वक्त होगा, इशराक का वक्त हो तो इशराक की नमाज पढ़ता है खुद घर को जाएंगे. उस दिन का पूरा काम अल्लाह की मदद रहेगी. அல்லாஹ்வினுடைய உதவி அவர் அந்த நாளைக்கு சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்திலும் எல்லா விஷயங்களிலும் அல்லாஹ் தஆலாவின் புறத்திலிருந்து உதவி, बरकत, रहमत, खैर என்று எல்லாமே உருவாகும் உண்டாகும். इस वास्ते इशराक पढ़ने को जाते थे. पूरे सहाबा वैसा सहाबा का मामूल नहीं, लेकिन एक ही एक सहाबी हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु फर्ज होते ही फौरन उठ को चल जाते हैं. फर्ज होते ही उठ को चल जाते हैं. 1 दिन 2 दिन 3 दिन नोट करें हुजूर, ये सब नोट करते से हुजूर देख दल को एक दिन अनेक से मिला को पूछे, अबू दुजाना உங்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து எந்த தேவையும் கிடையாது, அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து எந்த தேவையும் கிடையாது, அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து எது வாங்கணும் அது வாங்கணும் அது துஆ செஞ்சு அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கணுங்கிற தேவையே இல்லையா? या रसूल अल्लाह கண்டிப்பாக தேவை இருக்கு எனக்கு, अल्लाह के पास ज़रूरत नहीं सो इंसान को नहीं, अल्लाह के रसूल मुझे ज़रूरत है, अल्लाह की ज़रूरत है ना, मैं मांगता ना मैं. फिर कहीं को फजर पढ़ते ही चल जाते तुम्हें किसे वो दिन पूरा काम में अल्लाह की मदद होना अगर को चाहता कि उन्हें फजर पढ़दल को तिलावत जिक्र कर को उसमें छंदे इशराक की नमाज कब होती कि पढ़दल को उन्हें जानने कमाने को तब ज़बरदस्त उसकी कमाई में बरकत रहेंगी, खैर रहेंगी करको हुजूर बोले. ये सुन को हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु अपना किस्सा सुनाते हैं. बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह मुझे भी वो सब ख्वाहिश, मैं भी अल्लाह के दुआ तो करता हूँ, लेकिन मेरे जाने का रीज़न क्या? ನಾನು ಫಜರ್ ಫರಜ್ ತೊಳೆದ உடனே நான் வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக செல்லக்கூடிய அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் என்னுடைய வீட்டின் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவன் ஒரு मुनाफिक, एक काफिर, अपने आप को मुसलमान जैसा बताने वाला है, एक मुनाफिक. उन्हें है ना उसका एक झाड़ है पेरी चंबड़े और मरम, उसके झाड़ के डालियाँ पूरा मेरे घर में आकर छुपो है. रात में खजूरा सब गिर को रहता. मैं फजर पढ़ता को ज़रा लेट गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ही उठ जाएंगे, उठ को लगा खजूर गिर को है ना हमारे घर के अंदर गिर को है सब खाको खा लेंगे. वो हराम அனுமதிக்கப்படாத அனுமதி இல்லாமல் யாருடைய முஸ்லிமுடைய ஒரு சிறிய வஸ்துவையும் நாம் பயன்படுத்துவது என்பது हराम. इजाज़त नहीं सो किसी चीज़ भी इस्तेमाल करना हराम. कहाँ वो बच्चे मालूम नहीं सुखा को मुँह में डाल लेते कि वो हराम मेरे बच्चों के पेट में चले जाएगा ना. इस फिक्र से मैं जल्दी जल्दी जा लूँ, वो पूरा खजूर समझ को उठा को उसके घर में डाला तो समय. उन्हें एक मुनाफिक था. முனாஃபிக் என்றால் யார்? வெளியில் தன்னை மூமினாக காட்டிக்கொண்டு உள்ளத்திலாக காஃபிராக இருக்கக்கூடிய முஷ்ரிக்காக இருக்கக்கூடியவன், நான் मुस्लिम. तो हुजूर बहुत दिल में ये हुआ, असर हुआ, क्या फिक्र करते हैं ना इन्हें. ठीक है, हुजूर क्या बोले, एक सहाबी को भेजे, जाको इनके बाजू घर वाले के पास बोलो वो झाड़ बेच डालो, बोलो नहीं वो झाड़ दे डालो, बोलो इनको बाजू घर वाले को, इन गरीब इन अबू दुजाना इनको दे डालो, बोलो. उन्हें बोले नहीं देता हूँ. हुजूर बोले पैसे को बेच डालो, बोलो. उन्हें बोले नहीं बेचता मैं. हुजूर बोले इसके बदले में जन्नत में एक बड़ा बाग उसकी गारंटी मैं लेता हूँ.
انہیں تو منافق تھا نا، انہیں بولے نہیں مجھے نہ کہو، مجھے یہ جھاڑ چھوڑنا. اس کے بعد حضور کیا کریں، مدینہ منورہ میں ایک چھوٹا باغ، 10 جھاڑا ہی ہو، 10 جھاڑ کا ایک باغ، 10 മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തോട്ടം. அந்த தோட்டத்தை அந்த ஒரு மரத்திற்கு பகரமாக நான் தருகிறேன், அந்த மரத்தை அபூதுஜால் அவர்களுக்கு தந்துவிடு என்பதாக கூறுங்கள். जाको बोले, उन्हें मान लिया. मान लो 10 झाड़ का एक झाड़ के बदले में 10 झाड़ का एक छोटा बाग कुछ मिलता, मान लिया. मान लो को दिल में क्या नीयत थी उसकी, बोले तो सवाल को उठको मेरे घर में है झाड़ तो है सो मेरे घर में, मैं उसे बेचता नहीं तो भी क्या हुआ, यहाँ चला है वो, मैं पूरा तोड़ ले जाऊँ, हमें हर दिन तोड़ने का तोड़ना को रह जाऊँ. वो 10 भी मंजे होगा, ये भी मंजे 14 होगा. उसका ख़राब ऐसा इरादा था. सुबह को उठकर देखे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा बोलना, वो झाड़ भाग हो गया या नहीं हुआ उसके घर में. मैं ये वाक़या तुमने बोलता हूँ ना, क्या मकसद बोले तो एक अम्मी को अब्बा को दिल में फ़िक्र रखना, अपने बच्चे के पेट में मुंह के अंदर हराम का छोटा ये भी चल जाना नहीं, वो फ़िक्र रखने से उन्हें फ़र्ज़ पड़ते ही फ़ौरन छोटे छोटे बच्चे फ़र्ज़ पड़ते ही फ़ौरन उधर को कहीं हो जाते थे. वो खजूर खा को मुँह में कभी डालने नहीं बच्चे, वो हराम ना हो, उसका असर होगा बना. हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके 2 नवास हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, छोटे छोटे बच्चे सदका का खजूर घर में डाल पाए. मैं कई बार बोला हूँ सदका का खजूर घर में डाल पाए. एक बार गलती से था को मुँह में डाल ली हज़रत हसन हज़रत हुसैन. हुजूर तुप्पो 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 इन बदा के तमिल में खख कर को, अरबी में बोलेंगे कख कर, वो बोल बोल को मुँह से निकालने रखो, वो थूकने रखे. हुजूर नहीं बेटा हराम अंदर. एक नाना देखो हर एक बड़े को फिक्र रहना, अपने घर के बड़े को फिक्र रहना, हमारे बच्चों को मैं पक्का हलाल कमाना, 100 रुपये नहीं 10 रुपये कमाए तो भी हलाल बनना. वो हलाल अंदर बेटे के अंदर गए तो उसकी बरकत रहेंगी. हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह उनका इंतकाल होता है. 17 दीनार तंग कासगल 17 तंग कासगल दीनार दर अवर रोड़ी मुलू सब 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे मर्द बच्चे 11 हैं. 17 दीनार, 5 दीनार तो तजहीज़ जनाजा कफन करके उसमें चलेगा, 2 दीनार खबर खोदने वो जगह तैयार करने इंतज़ाम करने चलेगा. बचको था सो 10 11 बेटे था, एक एक को भी मुलू सा और तंग कास को बिड़े 10 और तंग कास ने 10 मदद मिले तो फिर ही पड़ता है. मगर उनके नस्ल में देखे करते, एक बड़े बुजुर्ग बोलते उनकी नस्ल में देखे करते एक दिन को गरीबों को 100 ऊंट 100 घोड़ा सदका करते थे कहते. लिए सो एक दिनार भी नहीं, लेकिन बरकत के पैसे रहने से इतना ज़्यादा अल्लाह उसमें बरकत दिया, इतनी ज़्यादा बरकत दिया. 100 घोड़ा सदका करना का तो मामूली बात क्या. हमें गाय में एक शेर लेने हैं ऊपर नीचे हो जाते, एक बकरा लेना का तो क्या हालत हमारी हो जाती. बरकत हमारे पास नहीं है, वो बरकत हमारी थी. अल्लाह के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या की चीज़ मुँह के अंदर चली गई, डाउट हो गया हलाल की हराम की कर को, अंगली डालते हैं ताड़ी डालते हैं खई करते हैं. वांदी சுயமாக வர வச்சு அந்த வாந்தியினால உள்ள போன எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க. कई को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं जो गोश्त हराम खाने पीने से बढ़िया है पैदा हुआ है वो जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाने का हकदार हो, वो जन्नत में जाने का हकदार नहीं होगी. इस वास्ते देखो हमारे पास कुर्बानी का जो निज़ाम है इसमें खून को ज़बह करके पूरा खून को बाहर कर देते, उसके बाद गोश्त को खाते. ये गोश्त के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़, खून खाना पक्का हराम टाइप को तुमने मालूम रहेगा. ब्लड खून पेशाब पाखाना मनी स्पम विंद इधे कोंडदान लैब में टेस्ट करते हैं ना. गोश्त इस खून को रखो, क्या बोलते बीपी है, शुगर इतना है, थायराइड है, खून को रखो. खून में हर किस्म के जरासीम किरूमी वायरस पूरा का पूरा खून के अंदर रहता है. जानवर को हमारे इस्लाम में जो तरीका है, यूरोप का पूरी दुनिया भी आज पूरे के पूरे 2 हाथ में रहते, कहीं वो हलाल तक को नहीं. भाई मुसलमान जो करते ना उसमें वायरस नहीं सो, क्या भी खराबी नहीं सो, पाक गोश्त मिलता, वो ज़बरदस्त गोश्त खाना का तो वैसा खाना नहीं तो गोश्त खाना नहीं करते. उन लोगों को मालूम होता हमारे पास इस्लाम में है. अल्लाह ताला से दुआ है कि इस्लाम के अहकाम को सही माने में समझ के मोहब्बत के साथ उसको अदा करने और हमारे अपने पेट को भी अपने औलाद को भी नस्लों को भी हराम चीज़ों से अल्लाह बचाने के तौफीक अता फरमाए. सुन्नत जो नहीं पड़ेगी सुन्नत